immune system no immune response elicited by Hampton carrier complex targets both the carrier and the hapten. Hapten carrier molecule conjugate और complex यह ट्रीट किया जाएगा एक तरह से फॉरेन मॉलिक्यूल एज इन होल, क्योंकि दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग है। इसको एक यूनिट, एक स्पीसीज, एक मॉलिक्यूल, और वास्तव में है भी एक मॉलिक्यूल हो गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ के ट्रीट करेगा बॉडी इम्यून सिस्टम. So in that case, now in this case, it will be recognized as foreign whole molecule. Foreign. Antibody जो generate होगा, that will be against the epitopes present on the carrier molecule. इसको समझने में कोई दिक्कत है? 8 point. Is it clear? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बताएंगे. समझ में आ गया तो बोलो. Yes कि no? Yes, sir. एक और खासियत है. Some haptens can bind to neoantigen भी बन सकता है इसके haptens, and we don't want neoantigens because that is dangerous. It destructs our own cell. Autoimmunity हो जाएगी. See how some haptens can, because haptens are small molecules and it has the property to covalently bind to any other molecule. Some haptens can bind to cell membranes. Example RBC. And in this instance, the cell, in this instance, cell and a small molecule, that is hapten, cell along with that small molecule hapten attached covalently to the cell membranes. This cell small molecule complex is called as neoantigen. ठीक, जब न्यू एंटीजन फॉर्मेशन हो गया, जैसे अब आरबीसी पर बाइंड कर गया, जनरली आरबीसी का न्यू एंटीजन बनता है, तो आरबीसी इन ए होल along with this hapten molecule, if it is covalently attached, so this whole RBC will be treated as foreign.
and then its destruction will be followed, and it will lead to the lysis of these RBCs, which are neoantigenic now, and as a result what you see is hemolytic anemia. ठीक, तो अब आप देखिए, हाँ गौर करने वाली बात, फर्स्ट एक्सपोजर जब वैक्सीन दे रहे थे तो वहां पर हम कैरियर मॉलिक्यूल पहले लगा दे रहे, हैप्टेन बदमाश है, नटखट है, कहीं जाके चिपक जाएगा तो इस पर एपिटोप है, इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। यही तो रिएक्शन है। कई बार आप सुने होंगे कोई दवाई खाए और कहते हैं कि रिएक्शन कर गया दवाई बॉडी में। क्या मतलब है इसका, रिएक्शन कर गया? यही मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटीजन। तो फर्स्ट टाइम जब दिए थे तो हैप्टेन उस समय कंजुगेटेड था कैरियर मॉलिक्यूल से पहले ही, सीसी के अंदर ही, वायल में ही, और जब एडमिनिस्टर किया गया, सुई के माध्यम से दी गया, बॉडी में दी गई, वो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड है, हैप्टेन अकेला नहीं है। सो दिस हैप्टेन इज नॉट अवेलेबल एंड इट इज कोवेलेंटली लिंक्ड। सो दिस हैप्टेन इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेल मेम्ब्रेन टू अटैच विथ। सो फर्स्ट एक्सपोजर vaccination will be successful. Now I'm talking about the second exposure in which the real pathogen has taken the entry. And this real pathogen and is also carrying this hapten, but this hapten is very small molecular size. बहुत सारे प्रोटीन है उसका, उसके किसी एक प्रोटीन का एक छोटा सा रीजन इज हैप्टेन। So now that cell will be processed, that pathogen will be processed. ठीक, और प्रोसेस होने के बाद if that antigen somehow gets the attachment on the RBC, क्योंकि पूरा प्रोटीन तो अटैच होगा नहीं, उस प्रोटीन का एक फ्रेगमेंट है हैप्टेन, कि फेगोसाइटोसिस हुआ, somehow this fragment has been generated and released, they have escaped somehow, and now the hapten will bind to the cell membranes of the RBC. तब क्या होगा? That RBC will be destroyed, will be taken for the destruction. चलो अब तुम्हारा काम हो गया, you will be destroyed. ये तो पैथोजन के केस में हुआ। अब ड्रग के केस में देखिए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ड्रग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको मिटा दे नीचे तक। आइबुप्रोफेन का नाम सुने हो? आइबुप्रोफेन, नहीं स्पेलिंग गलत है, आइबुप्रोफेन, हाँ ठीक है, ठीक है, पेन किलर है सर ये क्या? हाँ पेन किलर है, आइबुप्रोफेन। बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर, किसी दवाई के दुकान पर जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन nowadays in Western countries they do not use ibuprofen, because using ibuprofen has been proven to be very dangerous sometimes. क्या होता है? Ibuprofen has the ability to become neoantigen. Ibuprofen has the ability to make RBC and neoantigen. ठीक है, drugs such as this ibuprofen like can form neoantigens with RBCs. अब RBC पर अटैच हो गया ये, now that RBC will be taken for the destruction and it will cause hemolytic anemia. ठीक, तो आप देखिए हैप्टेन कितना इंपॉर्टेंट है। This is giving us a tool for our survival and benefit. Sometimes it will lead to adverse reactions.
If the drug that you have taken has the ability to become hapten, then it will become neoantigen. It will form neoantigen. समझ में आया ये पॉइंट? आगे बढ़े. Yes, sir. There are some other examples of haptens too, which are organic in nature, chemical compound. छोटा chemical compound है, organic in nature. Like, क्योंकि इस पर फिर काफी एक्सपेरिमेंट हुआ था 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ही. And there was a famous immunologist, his name was Karl Landsteiner. Landsteiner. The start of 20th century. Many experiments were done by this fellow. And he has showed that a compound such as M-amino benzene sulfonate this compound is able to elicit immune response when conjugated to a carrier molecule. अगर इसके साथ एल्बुमिन conjugate कर दिया जाए, then this complex will become immunogenic. एंटीबॉडी बनेंगे. ओके, क्या लिखोगे? Other examples हम बोल दे रहे हैं अभी. Other examples of haptens include M-amino benzene sulfonate. And it is able to elicit an immune response when conjugated to a carrier, such as ovalbumin या albumin. Okay. Is the 10th point clear to you? Okay. Pharmaceutical drugs, जो अभी ibuprofen का एग्जांपल दिया आपको, क्या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, become haptens. Become haptens, and this is the challenge. Okay, अगर कोई दवाई आप खा रहे हो और उसके अंदर कैपेबिलिटी हो हैप्टेन बनने का, क्या आपको खाना चाहिए? हेलो. Yes, sir. Yes. अगर हम आप किसी आदमी को दर्द हो रहा है और हम उसको 2 पेन किलर का चॉइस दिए, एक आइबुप्रोफेन दूसरा डाइक्लोफेनाक, which one will you take? This one or this one? This is not having the ability to become hapten, and this can become hapten, and it may form neoantigen. Which one will you take, or which one will you prescribe? This one or this one? Diclofenac.
Yes, diclofenac. डाइक्लो This you will not take. So this is the challenge कि हमको पता नहीं है, इतने सारे एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं और उस एंटीबायोटिक का मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है लीवर में, या उसका कोई मेटाबोलाइट या उसका कोई डेरिवेटिव मेटाबोलिसिस चल रहा है, उसका कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड, कोई ट्रांजिशन स्टेट, उसके अंदर भी कैपेबिलिटी अगर हो हेप्टेन बनने का, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए टू टेक दैट ड्रग। समझ रहे हो बात को? तो ये है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग, तो दिस इज द चैलेंज। तो किसी भी ड्रग के पास होने में ये सारे क्लियरेंस चाहिए कि हाँ इसके अंदर हेप्टेन बनने का तो काबिलियत नहीं है, इज इट सेफ, यस इट इज सेफ। इम्यूनो ऐसे पूरा करके देख लिया गया, इन अदर एनिमल मॉडल सिस्टम नो दे आर नॉट हेप्टेन्स। ओके देन ओके, दिस चेक इज पास्ड। तो ऐसे थोड़ी किसी दवाई का मंजूरी मिल जाता है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया सारे टेस्ट होते हैं, उनके क्लियरेंसेज होते हैं, उसके बाद ट्रायल्स होता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, तब जाकर के फाइनली अप्रूव होगा। सो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बिकम हेप्टेन्स and many such drugs which has not passed such test, और या जिसका रिजल्ट हमें अब जाके पता चल रहा है, क्योंकि ये अभी ये सब न्यू नॉलेज है। ओके, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बिकम हेप्टेन्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स because they are typically small molecules, so they have the capability, and you are taking that pill orally, स्टमक में जा रहा है, वहां टूटा, डिजोल्व हुआ, इट हैज मिक्स्ड इनटू द काइम, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ड्यूडेनम में गया, ड्यूडेनम में भी थोड़ा डाइजेशन का प्रक्रिया चला, आगे गया जेजुनम, एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन में। ओके, और उसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो करके कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स उसको ब्लड में भेज देगा। ब्लड में आ गया ये ड्रग, तो ब्लड में ही हमारा एल्बुमिन है ना, कैरियर मॉलिक्यूल, now it may bind to that pharmaceutical, that drug which you have taken, that form of drug। हो सकता है बाइंड करे, हो सकता है नहीं भी करे, डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में बाइंडिंग पॉसिबल है, क्या इन दोनों के बीच में रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या इन दोनों के बीच का कॉम्प्लेक्स लीस्ट एनर्जी स्टेट को फेवर करता है, देन ओके दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ओके, so once they have formed the complex with the proteins present in the blood, immune response will be elicited, and this will cause an immune reaction to that drug, and this can lead to symptoms such as skin eruptions। तो ये तो छोटा सिम्टम हुआ, स्किन इरप्शंस, रैशेज एटसेट्रा। एनाफाइलैक्टिक शॉक may also takes place, and that this is very dangerous। Anaphylactic shock, per person may die, but although this is rare, but in the severe cases anaphylactic shock is also observed। See, under antibiotic category, पेनिसिलिन का नाम सुने हैं? Have you heard of penicillin? नहीं सुना है पेनिसिलिन का नाम? यस सर, सुने हैं सर। नाक कटा दोगे तुम। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना? यस दवाई सर पहला एंटीबायोटिक है। हाँ, कौन इसका आविष्कारक है बताओ? नोबेल प्राइज भी मिला। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गुड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गुड, ठीक है। सो
So this penicillin is basically, it has a beta-lactam core, and it gives, and this beta-lactam core is basically in the taking the central role in this compound that which give rise to antibacterial property. Because penicillin can be पेनिसिलिन क्या करता है, आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, सेल वॉल का लेयर को इट disrupts. That's why it is antibacterial, and it is because of the beta-lactam core present in the penicillin. लेकिन penicillin also can be broken down by the enzyme beta-lactamase. बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो गया पेनिसिलिन से के लिए. That means bacteria is producing this enzyme beta-lactamase, and the beta-lactamase is hydrolyzing penicillin. इसको तोड़ दिया फिर. Now the antibacterial property of the penicillin, antibiotic property of the penicillin is lost. So this is the general mechanism. But doing so, when beta-lactamase is acting on the penicillin, penicillin आप बाहर, पर्सन ने बाहर से लिया, and the bacteria present in its body is, that pathogen is penicillin resistant. That means the bacteria is having this enzyme beta-lactamase, that pathogen, and you have given penicillin. The penicillin will be taken up by the bacteria, and it will hydrolyze that penicillin by this enzyme beta-lactamase, and the hydrolyzed product of penicillins and derivatives of penicillins will be released in the blood by the bacteria by exocytosis process. So in the blood, you will see there is accumulation of, there is a presence of this penicillin derivatives, benzyl penicilloyl derivatives. Benzyl penicilloyl derivatives. बेंजाइल पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स कहां से आया? पेनिसिलिन से, by the action of this enzyme, and these derivatives are produced in the bacteria. अब बताओ, the pathogen is resistant to this antibiotic, and you are giving this antibiotic to that person. एक तो नीम ऊपर से क्या बोलता है, नीम डबल, तो आप इस बैक्टीरिया को फूड भी दे रहे हो. फूड बैक्टीरिया के लिए फूड नहीं है, पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, तो इसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो दैट विल फंक्शन एज हेप्टेन. अगर बैक्टीरिया पेनिसिलिन रेसिस्टेंट नहीं होता तो बैक्टीरिया खुद मर जाता है पेनिसिलिन से, लेकिन पेनिसिलिन रेसिस्टेंट है, वो खुद तो बच ही रहा है, प्लस उसका जो डेरिवेटिव्स हैं इसके, उसको मेटाबोलाइज कर दिया इस एंजाइम से. दोज डेरिवेटिव्स can function as heptane, and these derivatives have the properties to bind to other proteins present in the blood, serum or extracellular fluid और lymph. बैक्टीरिया जहां भी होगा उस पे बगल में कोई ना कोई टिश्यू फ्लूइड तो है ही,
bind to other proteins, and that fluid protein is there in the aqueous phase. So it will bind to other proteins and then elicit an immune response. उसने रास्ता भी भटका दिया। बैक्टीरिया अगर सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन से, तो पेनिसिलिन के प्रभाव से वो मर जाता, सेल वॉल नष्ट होकर के वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन रेसिस्टेंट है तो वो तो बच ही रहा है, प्लस उसका जो बाय प्रोडक्ट है बेंजाइल पेनिसिलॉयल डेरिवेटिव, ये बाय प्रोडक्ट is binding to other proteins and that, so ये हेप्टेन बन गया। इसको कैरियर मॉलिक्यूल तो हमारे ब्लड में है ही बहुत सारा, कैरियर मॉलिक्यूल बन गया, उससे मिल गया और उससे कंबाइन करके now this complex is immunogenic. So antibody will be generated against this complex, not against the bacteria. बैक्टीरिया बाईपास कर गया, चतुराई से निकल गया। एंटीबॉडी अब इसके अगेंस्ट, इस कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट हेप्टेन है एंड द कैरियर मॉलिक्यूल ब्लड प्रोटीन्स विल बी अगेंस्ट दिस अननेसेसरी। क्या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी टारगेट करने से कोई लाभ है, हमें कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है? नहीं, उल्टा एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, नॉट रिक्वायर्ड एंड इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? यार सर फिर से समझा दीजिए सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तारक? यस सर आ रही है, यस सर आ रही है। समझ में आया या कोई सवाल है? चलो, समझ में आ गया तो ठीक सर है। थोड़ा सा सर बता दीजिए शुरू से सर। सर 11th शुरू से बता दीजिए सर, वो थोड़ा आइडिया के साथ सर। शुरू से कहां से? फर्स्ट पॉइंट से 11th पॉइंट ना? कौन सा शुरू? 11 पॉइंट से ही सर। वो पेनिसिलिन कैसे जो है वो रेसिस्टेंट हो गया है सर। वो कैसे रेसिस्टेंट हो गया है उसमें मत जाओ, उसका बहुत सारा आंसर है। हाउ इट हैज बिकम रेसिस्टेंट। ओके, आप इस पर गौर कीजिए, वो रेसिस्टेंट फॉर्म है पैथोजन। द बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज रेसिस्टेंट टू पैथोजन। ये बॉडी में जाके रेसिस्टेंट नहीं हुआ है, ये पहले से ही रेसिस्टेंट था पैथोजन। सॉरी, पैथोजन का रेसिस्टेंट। बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन।